Okay. So now you need to understand, like your birth chart is being divided into the three category. एक होता है आपकी movable, this is movable. आप बोल सकते हो आपके बर्थ चार्ट में जहां पर एरीज है, wherever the Aries sits, wherever the Cancer sits, wherever the Libra sits, and wherever the Capricorn sits, we can say that these are changeable Rashi. Changeable means like you can work on yourself, you can work on yourself, you can work on your comfort with the help of your own hard work. You can get comfort, you can get your home, you can get overall luxury in the life. Relationship also you can work, and the career also you can work. So these are the movable rashis. We can say that these rashis can be easily changeable with the help of our own hard work. If you will do a hard work in connected to these rashis, then things will be started aligning in your favor. On the other side, there are some fixed rashis. Fixed means here you have to put a lot of hard work to get the things, like Taurus, Leo, Scorpio, and Aquarius. So now your these are the fixed rashis. Fixed means their patterns are fixed in the line. It will take time to change these rashis. Fixed means these signs can only be changed with lot of devotions, discipline, sadhana, trust on God while surrendering. Because second is your money, it's your food habits also. These are fixed. Your past karmas are fixed. Your past karma can only be changed on the basis of huge sadhana that you are going to do in the present life. Your pain, your transformation are fixed in life, but you can overcome these transformation with the help of a lot of hard work on yourself. And Aquarius, that is again fixed. So second house, how can you change the second house? Second house, which is connected to your food habits. While changing your food habits or discipline in your food, or make sure that you are sattvic, you are not eating the non-veg, you are respecting the food. Make sure that you are not scrolling your mobile phone while eating the food. Don't disrespect the food, or don't do anything against food, like wasting of the food or eating non-veg, wasting of the water, wasting of the electricity. So if you bring more discipline or sadhana in your food habit, like if you do fasting, so anybody who's struggling a lot money wise, then you can recommend them to do the fasting, because your money and fasting houses is same, that is the second house. Taurus is give back to the universe, is a remedy of the Taurus. Any planet sitting in the Taurus sign is bull. So as much as you feed to the cows, your life will be sorted. So Taurus, what is the best remedy of the Taurus? As Taurus is a fixed sign, so this will be going to, this is a fixed karma which you're carrying from the past life. How much money you will be having, what about which type of family you are going to get, will you be born in a rich family, or you are going to struggle money wise? That is the Taurus. How you can change the Taurus? Taurus can be changed with your food habits. Doing fasting can help you out to change your Taurus. As well as Taurus, the sign of the Taurus is bull. So it has been said that on the regular basis, if you're feeding to the animals, like you're feeding to the cows, you're feeding to the dogs, this will also help you out to change your karma. So on the regular basis, if you're feeding to the cows or you're feeding to the animals, this will be going, it has a direct connection with your money. So that is the reason, like you plant more trees, or in any form you are giving back to the universe, you will notice that the money will be going to increase in your case. So giver is a success mantra for the Taurus. As much as you give, the blessings you are going to receive. So why it has been said, like second house, which is the house of the money, it has been said whatever your income is, at least 10% of your income should be donated. If you don't have any type of loans and debts, if you're free from loans and debts, if you have a loans and debts, so first your duty is towards the loans and debts. If you have taken money from someone, so first you have to pay to that person, and after that you have to take the 10% of your income as it is, try to donate. So whatever you give back to the universe, that will come back to you. So the giver is a success mantra for the Taurus.
Now you can check your birth chart. Wherever the Taurus sits in your birth chart, that means the giver. तो आपको जहां पर भी आपका टॉरस बैठा है, टॉरस अगर आपके 7th हाउस में बैठा है, यू वांट टू improve your marriage, as much as you feed to the animals, as much as you do the donation, you will notice that Taurus is going to improve. Wherever the Taurus sits, that indicate your money too. आपका पैसा कहाँ से आएगा, which career you will choose, आपका पैसा आप क्या ऐसा करोगे जहां से आपके पास पैसा आएगा, आपका टॉरस जहां पर भी आपके बर्थ चार्ट में बैठा है वो आपको इंडिकेट करते हैं फ्रॉम वेयर you are going to earn the money. Let's say Taurus लगना, Taurus is sitting in the first house, so हम बोल सकते हैं कि बंदे के पास पैसा आएगा, जितना सेल्फ से पैसा आएगा that will be a self-made money. As much as person is going to spend money on themselves, more they are going to get the money. Taurus अगर आपके second house में बैठेगा तो हम बोल सकते हैं कि like a person can have a restaurant, or they may be in something which is connected to the finances, or they are earning with the help of the speech too. Taurus अगर आपके थर्ड में होएगा, then we can say that with the help of the communication, presentation, or working with a sibling, or the person can become a domestic traveler, or anything through the traveling a person can earn, or through any skills like writing or communicating skills also the person can earn the money. Let's say the Taurus is sitting in the 8th house, and what we can say, the person can earn from the person can become a doctor, or from any pain, or the person can work in any institution where the hidden work is there, or a person can earn from the occult science too. Any earning which is coming from where you are helping people to transform their life, or the person can work in an insurance company too. So wherever the Taurus sits, that represent from where you are going to get the money. And if a person is facing money related problem, or the person wants to grow money wise, then you have to make sure that you should recommend that person to do more and more fasting and to feed to the cows, because you need to go back, check कौन सा साइन है. टॉरस का जो साइन होता है बुल होता है, एंड टॉरस इज अ जोडिक साइन व्हिच इज कनेक्टेड टू द मनी. तो आपको मनी कैसे इंप्रूव करना है, कहां से आपका पैसा आएगा, दैट इज टोटली डिसाइडेड. जहां पर भी आपका टॉरस बैठेगा आपका पैसा वहां से आएगा. 8th हाउस स्कॉर्पियो, आपका जहां पर भी स्कॉर्पियो आपके बर्थ चार्ट में है, बोल सकते हैं कि दैट विल बिकम द रीजन फॉर द पेन इन योर लाइफ. आपका पेन और ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन होएगा वेयर एवर द स्कॉर्पियो सिट्स इन योर बर्थ चार्ट, दैट विल रिप्रेजेंट द पेन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन. आपका पेन और ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, किसी का पेन और ट्रांसफॉर्मेशन आता है ड्यूरिंग देयर हायर स्टडीज, और या फिर हम बोल सकते हैं स्कॉर्पियो इज द राशि ऑफ द पेन और ट्रांसफॉर्मेशन. ड्यूरिंग पेन और ट्रांसफॉर्मेशन आपका जहां पर भी आपका स्कॉर्पियो बैठा है उससे कनेक्टेड कोई भी पर्सन से आप मिलोगे और वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने को हेल्प करेगा. लेट्स से somebody have a Scorpio in the 9th house, then we can say कि उसको अपने हार्ड टाइम में कोई मे बी उसके अपने फादर की वजह से हार्ड टाइम आया हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से हार्ड टाइम आया हो, दैट कैन बी द रीजन, और अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस की वजह से हार्ड टाइम आया हो, या उसका लक उसका साथ ना दे रहा हो. ड्यूरिंग इट्स पेन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन टाइम उसको कोई अपनी लाइफ में गुरु मिलेगा, कोई काउंसलर मिलेगा जिसके थ्रू द लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्म. तो आपकी कोई भी जोडिक साइन जहां जहां बैठी हुई है आप उससे देख सकते हो व्हाट विल बी द रीजन फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन. आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपका पेन कहाँ से आ रहा है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम द बर्थ चार्ट. हाँ जी प्रदीप. नमस्ते जी. हाँ जी नमस्ते. जी जी. I also wanted to inform you that today I have some people coming, so I'll leave at 9:30. ओके. और मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि जो काव को डोनेशन करनी है वो रोज करनी होती है या पर्टिकुलरली कोई डे होता है? कोशिश करो कि आप डेली करो, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग टू व्हेन यू आर फीडिंग टू द काउज इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू फीड. कोशिश करो अगर आप डेली फीड करते हो, यू आर इन इंडिया राइट नाउ, यू कैन इजीली फीड डेली, तो आप कोशिश करो कि आप डेली खिलाओ. और अगर आप डेली नहीं खिला सकते हो देन यू कैन चूज द डेज, लाइक थर्सडे इज अ गुड डे टू फीड, लाइक थर्सडे यू कैन फीड द बनानास, सैटरडे इज अ गुड डे टू फीड. वैसे तो आपको डेली खिलाना चाहिए. और कोई पर्टिकुलरली चीज खिलानी चाहिए या कुछ भी? आप कुछ भी खिला सकते हो एज पर योर प्लैनेटरी ऑल्सो आप खिला सकते हो. लेट्स से आपको जुपिटर अपना इंप्रूव करना है देन यू कैन फीड द बनानास. आपको मंगल अपना इंप्रूव करना है आप अनार खिला सकते हो. आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हमेशा जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं आपको हमेशा गाय को सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाने चाहिए, क्योंकि जितने भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी साइकिल आती है सन से. जैसे कि अभी वो नाशपाती आ रहा है, सो
जितना जैसे जैसे आपका सन का ट्रांजिट होता जाता है वैसे वैसे आपको आपकी लाइफ में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। वैसे तो आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कीप ऑन फीडिंग। ठीक है जी, ठीक है, ओके क्लियर है? जी। तो अब आपकी जहां पर भी आपका प्लैनेट आपका बैठेगा वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट आपकी लाइफ में होगा क्या। लाइक आपकी आपकी लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिव होगा इस एरिया में, किसी का चाइल्डहुड में ट्रॉमा होता है, कोई चाइल्डहुड में मनी वाइज सफर करता है बट आगे जाकर वो अच्छा ग्रोथ कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का चाइल्डहुड काफी ज्यादा रॉयल होता है और वो आगे जाकर उनको मनी वाइज प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सो आपको बस देखना है कि आपका कहाँ पर आपका स्कॉर्पियो बैठा है, कहाँ पर आपका टॉरस बैठा है, कहाँ पर आपका लियो बैठा है, कहाँ पर आपका एक्वेरियस बैठा है। ये सब आपकी फिक्स्ड राशिज है। फिक्स्ड राशिज मीन्स कि अब इनको आपको इनको इम्प्रेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना है। आपका पैसा आपको इजिली, एक होता है टॉरस मीन्स द पास्ट लाइफ कर्मा, ये आप पिछले जन्म से आप कैसी एनर्जीज लेकर आ रहे हो। मे बी आप पिछले जन्म से एक पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हो पैसे की, बट इन दिस लाइफ मे बी यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, मे बी यू आर बोर्न इन अ रिच फैमिली, बट आपने उस पैसे का सही तरीके से यूज ही नहीं करा। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा जाता है बट जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों की चाइल्डहुड काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक जाता है। मे बी द स्कॉर्पियो सिटिंग इन द फोर्थ राशि, हम बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड में काफी ज्यादा पेन और ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा। सो आप जहां पर भी कौन सी राशि बैठी आप पता कर सकते हो कि क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही होंगी एंड हाउ यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, व्हेन द प्लैनेट सिट्स, लेट्स से अगर हम मरकरी की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली द मरकरी इज। मरकरी आपका डुअलिटी का प्लैनेट है। तो मरकरी की जितनी भी राशि है वो डुअलिटी डुअलिटी की है, लाइक जेमिनी, वर्गो, मर्क, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। ये मरकरी की राशि है, ये भी मरकरी की राशि है, ये जुपिटर की राशि है और ये भी जुपिटर की राशि है। मरकरी एंड जुपिटर ये दोनों, दे बोथ आर द प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। व्हाट डज डुअलिटी मींस? डुअलिटी मींस आप इन दो प्लैनेट्स पर अपनी लाइफ में काम कर सकते हो। तो जुपिटर विच इज अ प्लैनेट ऑफ द लक, आप अपना लक पिछले जन्म से भी लाते हो। लॉट ऑफ टाइम इट हैज बीन नोटिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट सफरिंग अ लॉट इन लाइफ एंड अ वेरी वीक बर्थ चार्ट डूइंग वेल इन लाइफ। क्यों? क्योंकि मरकरी और जुपिटर हो सकता है पिछले जन्म से एक अच्छी किस्मत लेकर आए, बट अब आप ही अपनी लाइफ में कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो, कोई आप काम ही नहीं कर रहे हो, तब आपका क्या होगा, धीमे धीमे कर कर आपकी किस्मत खराब होगी। मे बी यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, आपका जुपिटर अच्छा था बट आपने उतनी मेहनत ही नहीं करी, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में कार्मिक प्लैनेट ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। बेनिफिट प्लैनेट सब आपके बचपन में एक्टिवेटेड होते हैं। लाइक यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, मे बी यू हैव अ गुड जुपिटर, आपका लक अच्छा था इसलिए आपको वेल्दी फैमिली मिल गई। अब आगे जाकर आप देख सकते हो कि जो लोग एज के बाद काफी पैसे वाले हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उनको जो पैसा दिया उनके हार्डवर्क से हुआ। एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ राहु, केतु एंड शनि कम्स। और वही अगर आपका जुपिटर हुआ, वीनस हुआ, ये सब आपके इनबिल्ट प्लैनेट है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक दे हैव अ गुड प्लैनेट, इट हैज बीन नोटिस, मे बी दे हैव अ गुड जुपिटर और दे हैव अ गुड वीनस, बट मे बी वो इस जन्म में कुछ गलत कर रहे हैं। लाइक जुपिटर इज अ वेरी सात्विक प्लैनेट। अगर आपको अपना जुपिटर अच्छा करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सात्विक रहना है। सात्विक मीन्स लाइक यू कैंट ईट नॉन वेज, आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, आपको इंटीग्रिटी फॉलो करनी है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, और आप जैसे जैसे करना स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपके कर्मा एक्युमुलेट होते जाते हैं। अब वो कर्मा जैसे आपके एक्युमुलेट होते हैं, जब भी आपकी कोई कार्मिक दशा स्टार्ट होती है, लाइक सैटर्न, राहु, केतु, वैसे ही वो आपको बुरे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देती है और वो बुरे रिजल्ट्स आपको एकदम आपकी लाइफ में डाउनफॉल ले आएंगे। लाइक सडनली बंदे का काम जीरो हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हाट आप ही के जो कार्मिक कर्मा है, आपने जो कर्म किए हैं या आप इस प्रेजेंट में जो भी आप कर्म कर रहे हो, वही आपके कर्म एक्युमुलेट होकर आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। कब देना स्टार्ट करते हैं? जब आपकी कोई भी कार्मिक दशा चलती है। सो मे बी आपकी भी माइंड में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रहता होगा कि यार ये बंदा तो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा गलत कर रहा है बट स्टिल द पर्सन इज ग्रोइंग। पूरा आपकी लाइफ डिसाइडेड होती है आपकी कौन सी दशा चल रही है। अगर आपकी कार्मिक दशा चल रही है, लाइक आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, अब आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क के थ्रू ही आपको चीजें मिलेंगी। अब आपकी मानो की बेनिफिट की दशा चल रही है, लेट्स से आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है, जो कि आपके बर्थ चार्ट में बेनिफिट है, ड्यूरिंग दैट टाइम आप ग्रो कर जाओगे। सो पूरा रोल आपकी लाइफ में दशा का
एज पर द केस स्टडी एक क्लाइंट था जिसने बहुत पहले मतलब 30 इयर्स पहले किसी का मर्डर किया था। केस चला, वो बंदा बाहर निकल आया। बेटी की शादी के एक दिन पहले पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, केस खुल गया, ही एंटर्ड इनटू सैटन की दशा। तो अब वो 30 साल पहले जो केस चला था, उस केस में उसकी दशा अच्छी थी एंड दैट इज द रीजन वो वहां से निकल गया। अब वो केस 30 साल के बाद क्यों खुला? क्योंकि उसकी प्रॉब्लमेटिक दशा आ गई। जब प्रॉब्लमेटिक दशा आती है वो आपको कर्मों की सजा देती है। एंड व्हेन दिस इवेंट हैपेंड बिफोर 1 डे जब उसकी डॉटर की शादी थी, मतलब घर में मेहंदी लग रही थी और उसको पुलिस लेने आ गई, नाउ ही इज इन द जेल। सो सिर्फ ओवरऑल जो आपकी लाइफ की गेम होता है दैट इज ऑफ द दशा। तो आपकी हो सकता है कोई अच्छी दशा चल रही है, दैट इज हाउ द व्हाट इज द आंसर इज। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि लोग तो इतना अधर्म करते हैं, यू स्टार्टेड कंपेयरिंग योर लाइफ टू देम, यार वो तो नॉनवेज खा रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो परेशान कर रहा है, तब भी वो ग्रो कर रहा है, हो सकता है उसका वक्त अच्छा हो। आप आगे जाकर पढ़ोगे, लॉर्ड विष्णु ने प्लैनेट आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस किए हैं। लॉर्ड विष्णु भी आपके कर्मों में बंधे हुए। एज पर माई एक्सपीरियंस आफ्टर कनेक्टिंग टू लैक्स ऑफ पीपल, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप अपनी लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव कर्मास लाए हो और आप इस धरती पर आकर वो नेगेटिव कर्मास करते हो, तो भगवान आपसे अधर्म कराना स्टार्ट करता है। क्यों कराना स्टार्ट करता है अधर्म? बिकॉज भगवान भी आपके कर्मों में बंधे हुए। जब तक कि आपके पास लेट्स से आप इस दुनिया में 90% पॉजिटिव कर्मा लाए हो, 10% नेगेटिव कर्मा लाए हो, और आप इस जन्म में आकर बहुत गलत गलत कर रहे हो, अब आप और ज्यादा गलत गलत करोगे, क्योंकि जब तक आपके वो अच्छे कर्म बर्न आउट नहीं होंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वाइसा वर्सा क्यों लाइक वीक बर्थ चार्ट वाले ग्रो कर जाते हैं? क्योंकि वीक बर्थ चार्ट वालों ने काफी सफरिंग हुए थे। आपके जितने मैलेफिक प्लैनेट है वो आपको लाइफ में सफरिंग देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, और वो अपना इस प्रेजेंट लाइफ में अपने कर्मास को एक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो क्या करते हैं, मानो कि उसके पास 50% अच्छे कर्मा है, 50% बुरे कर्मा है, which you will learn in the profession how good and bad karmas you have. लेट्स से आपके पास 50% अच्छे कर्म है और 50% आपके पास बुरे कर्म है। अब जो आपके पास 50% जो अच्छे कर्म है, आपने उसको रिटेन किया और आप और ज्यादा अच्छे कर्म करने लगे, तो आपका क्या हुआ, आपने और ज्यादा प्लेस में जाते गए, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्टेड ग्रोइंग। तो यही रीजन है कि आपको हो सकता है वो कर्म आज आपने किया और आपकी दशा अच्छी चल रही है और आप बच कर निकल गए, बट जिस दिन आपकी बुरी दशा चली उस दिन आपका हो सकता है 30 साल के पहले का पेपर खुल जाए। सो दैट इज हाउ द लाइफ इज। सो अब पूरा गेम कब होएगा, कब आपको कर्मों की रिजल्ट्स मिलते हैं? जब आपकी कोई भी मैलेफिक की दशा चलती है। हाँ जी प्रतीक। मान लीजिए अगर कि कोई खराब दशा है, उसमें कोई खूब ज्यादा मतलब ऐसी दशा है जिसमें इंसान को पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती हो, और वही इंसान उस दशा में ही खूब ज्यादा कुबेर जी लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करने लग जाए, तो कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं? डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मास, लाइक व्हेन यू आर प्रेइंग, जैसे कि आपका जो 5th हाउस है ये आपको बताता है, आप कोई भी मंत्र चैंटिंग करोगे, आप कोई भी कुछ भी करोगे, दैट इज योर पास्ट कर्मास। डिपेंड करेगा कि आपके कर्मास कैसे हैं। जब भी आप किसी भगवान की प्रे करते हो, अगेन डिपेंड अपॉन हाउ गुड योर कर्मास इज। पहले वो आपकी लाइफ में यहाँ पर अपने से 12वें में जाकर लॉस करता है, फिर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, फिर आपको पैसा देता है। दिस इज अ प्रोसेस। ओके। हाँ जी, आप डिपेंड करेगा कि हाउ गुड इज योर कर्मास। लेट्स से आपने कोई मंत्र जाप करना स्टार्ट किया और लेट्स से कि आपके पास 90% यू हैव अ गुड कर्मास एंड 10% यू हैव अ बैड कर्मास। तो जैसे आपने कोई भी मंत्र जाप किया, तो पहले तो जैसे सिंपल आप केस स्टडी से ऐसे समझ सकते हो, कोई बंदा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि आपका हार्ट का ऑपरेशन होना है। अब जब हार्ट का ऑपरेशन होगा तो आपको दर्द होगा, इज इट राइट? क्योंकि पहले जब आप कोई डीटी को जब आप जागृत करते हो तो वो आपकी लाइफ से निगेटिविटी हटाती है। निगेटिविटी जैसी हटाती है, आपके सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस आना स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर हार्डवर्क आना स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट आप कर्म करना स्टार्ट कर देते हो जो कि आप बहुत टाइम से नहीं कर पाते हो। सेकंड, आपका अपने से सेकंड में वो आपको वेल्थ दे जाता है। दैट इज हाउ द लाइफ इज। सो कोई भी आपकी दशा चल रही है वो टोटली, वैसे नहीं कि शनि की दशा में भी लोग 100 करोड़ के लोग बने, बट क्या वो शनि की तरह एक्ट किए, कैसा उनके बर्थ चार्ट में शनि है। और अब शनि अगर आपको पैसा देगा तो हार्डवर्क के साथ देगा, कंसिस्टेंसी के साथ देगा। राहु आपको पैसा देगा, आज पैसा देगा, कल वो आपको कंगाल कर देगा, क्योंकि राहु का पैसा लोग सस्टेन नहीं कर पाते। पीपल कांट सस्टेन राहु का पैसा, बिकॉज राहु इज एक्चुअली सैटर्न, और लोग राहु की दशा में शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर देते हैं, शो ऑफ में आ जाते हैं। समटाइम दे आर वेरी मच ट्रैप्ड इनटू दिस डिजिटल वर्ल्ड।
वो इल्यूजन्स में आ जाते हैं, मे बी वो किसी को भी शो ऑफ कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि राहु की दशा होती है, डिपेंडिंग की कौन सी एज में आती है, किसी भी एज में आती है, बंदा एक गलत डिसीजन लेता है। कहा गया है कि जब भी आपकी राहु की दशा चल रही है तो मेक श्योर आप एक एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर ही स्टेप्स ले रहे हो, बिकॉज राहु की दशा वाले को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि उसके साथ एक अलग ही शेडो चल रही होती है, तो उसके अंदर स्टबनेस आ जाती है, उसको कोई भी कुछ कहता है तो उसको ईगो आ जाती है, और उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो सही है। और जब आपको ऐसा फील होने लगता है आप सही हो, तो अपनी लाइफ में गलत स्टेप ले लेते हो। तो कोई भी दशा आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं है, इट इज ऑल हाउ यू आर चैनलाइजिंग द एनर्जीज। कि आपने चैनलाइज कर ली अच्छी तरीके से तो अच्छा है, वरना इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। हाँ जी प्रतीक। जैसे कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी राहु की दशा ही थी, तो शायद इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, बिकॉज आई गॉट कंपार्टमेंट इन क्लास 10th, देन आई फ्लंक्ड इन 11th, देन 12th, देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन इंजीनियरिंग, ड्रॉप्ड आउट, फिर बहुत एवरेज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म लाइफ, बहुत सारी जॉब्स चेंज करी, निकाला गया। लेकिन आज अगर मैं कोई चीज पढ़ूं तो मैं, मतलब मैंने अगर देख ली तो मेरे दिमाग में घुस गई, बहुत फास्ट है। क्योंकि आपकी दशा का है ना, जितनी भी आपकी दशा चलती है सब आपको यहाँ पर इफेक्ट डालती है। आपका टेम्परेरी लगना चेंज हो जाता है। जब आप आगे जाकर प्रेडिक्शन सीखोगे तो आपको पता चलेगा आपका एक्चुअली जो भी दशा चलती है वो आपके सेल्फ पर इफेक्ट डालती है। तो जब आपकी राहु चला, वो जहां पर भी आपका राहु बैठा हुआ एज इट इज आपका टेम्परेरी लगना बन गया। तो अब राहु हमेशा ही खराब होता है एक तरीके से, या नॉट फिर? नेसेसरी, अच्छा, राहु जो ओके। फॉलोअर, राहु जो फॉलोअर, राहु आपके जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग काम करेगा। बट हम बोल सकते हैं 98% राहु डैमेज करता है। 2% लोग राहु को बचा ले जाते हैं, बिकॉज राहु इज एक्चुअली शनि। राहु शनि का एजेंट है। राहु आपकी लाइफ में, अगर आप शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हो और आप दिखावे में नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग, और आपकी राहु की दशा चल रही है, आप अपनी स्किल्स, आपको हो सकता है राहु आपको जॉबलेस बना दे, आपसे सब काम आपका ले ले, बट वो खाली लेटा है, वो लेटा पड़ा है, उसको कोई काम नहीं कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में कोई स्किल्स ऐड ऑन नहीं करी, तब तो राहु आपको जीरो पर पहुंचा देगा। बट और राहु रिलेशनशिप इश्यूज भी राहु में होते हैं काफी। बहुत, आपकी जिस एज में भी राहु आएगी, अगर आपकी राहु टीन एज में आएगी तो बंदा टीन एज में कोई रिलेशनशिप से कनेक्टेड कोई गलत डिसीजन लेगा। आपकी करियर वाली एज में आएगी तो आप करियर से कनेक्टेड कोई गलत डिसीजन लोगे। बुढ़ापे में आएगी तो हेल्थ में कुछ दे जाएगा, या हेल्थ में दे जाएगा, आपने कोई गलत प्रॉपर्टी खरीद ली या आपने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, कुछ ना कुछ आपको गलत करवाएगा। क्योंकि राहु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बंदे को ऐसा लगता है कि वो सही है, बट एक्चुअली वो सही नहीं होता। इट्स अ शेडो प्लैनेट। वो आपको इतना इल्यूजन दे देता है जैसे कि कोई एक रेपिस्ट है, वो रेप कर रहा है जाकर। जब वो रेप कर रहा है वो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस सोच ही नहीं पाता, वो इतना फ्यूचरिस्टिक बन जाता है, वो पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में कर लेगा राहु वाला कि मैं ये करूंगा और मैं ऐसे डेड बॉडी को इधर कर दूंगा उधर कर दूंगा, बट एक्चुअली वो सच्चाई नहीं। राहु वाला बंदा प्रैक्टिकलिटी में नहीं रह पाता। तो राहु तो का तो हम ये बोल सकते हैं कि झूठ ये जो बोलता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो क्राइम पेट्रोल वाले हैं राहु वाले हैं सारे। हाँ, रिसर्च भी राहु ही है ना, आपका जो डीप रिसर्च है वो भी राहु ही है। आपकी वो जो भी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इट्स प्योरली राहु। जी राइट। या ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा ना। अब क्या है, अभी का जो एरा चल रहा है ना, ये कलयुग है। कलयुग में राहु केतु शनि बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड। अब आप किसी को सही ज्ञान दो तो लोगों को समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो आप? अभी वो ये लाइक कॉकरोच जनता पार्टी में क्यों इतने ज्यादा लोग मिल गए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज 95 या 98% ऑफ पीपल आर इन इल्यूजन। राहु वाले का ब्रेन वॉश बड़ी जल्दी हो सकता है। मैंने आपको कोई एक स्कीम समझाई जाए, जैसे कि राहु किसी के टीनेज में आ गए, कैसा उनके साथ, राहु वालों के साथ क्या होता है, लाइक लोगों का इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग में जाता है, बिटकॉइन में जाता है। वो क्या होता है, आपको अगर आपने कभी शेयर होल्डिंग की हो तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, उसमें क्या होता है कि आपको आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, और अगर आप डेली कर रहे हो, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने 5 लाख रुपए लगाए और आपको एक दिन 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब राहु वाला अरे वाह यार, इससे तो शॉर्टेस्ट तरीका कोई है ही नहीं। अब वो 10 लाख रुपए लगाएगा, वो जीरो पर आएगा। तो राहु पहले आपको रिजल्ट्स देगा, फिर रिजल्ट्स देकर आपको जीरो पर करेगा, क्योंकि आपको एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग है कि बंदे को अपने सेंसेस पर कंट्रोल नहीं रहता है। राहु आपका क्रिमिनल माइंड है। राहु मीन्स फास्टेस्ट मूविंग, मतलब जैसे मरकरी आपका माइंड का प्लैनेट है, राहु के पास सिर्फ माइंड है, राहु के पास बॉडी है ही नहीं। तो राहु की दशा में बंदे का कुछ भी चल रहा है तो सिर्फ माइंड चल रहा है। अब वही बात है, खाली दिमाग शैतान का। तो राहु वालों को तो बोला गया स्पेशली, भैया तुम कुछ पढ़ो। अगर वो पढ़ेगा नहीं, वो अलग अपने मनी के लॉसेस करेगा, डैमेज करेगा,
दैट इज हाउ द राहु इज। क्योंकि राहु मीन्स कि आपके साथ एक शेडो चल रही है, मतलब आप करना हो सकता है आप अच्छा चाहो, बट वो शेडो कहेगी छोड़ यार, क्या पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, चलो चलते हैं। एंड दैट इज हाउ यू विल बी इन द चाइल्डहुड। आप फोकस नहीं कर पाते हो, मन ही नहीं लगता होगा, चाह कर भी मन नहीं लगता है, बिकॉज एक शेडो आपके साथ चल रही है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? एनी क्वेश्चन मीनाक्षी, मानसी, प्रतीक? नहीं, thank you. No, Can ma'am. I take your leave now? Yeah, I yeah. have to go. You will get the recording anyways. Don't जी, worry. thank you जी, thank you very much. Yeah. Aji, Mansi, Meenakshi. No, ma'am. No doubts. Yeah. Is this clear, Meenakshi? Yeah. Yeah. यस मैम, जस्ट So, वो थर्सडे को मिस हो गया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, वैसे तो मैंने रिवीजन ही करा दिया आपको, यही था आपका कि कौन से डुअलिटी के प्लैनेट है, कौन से मूवल प्लैनेट। मैं टीम को बोलूंगी आपको रिकॉर्डिंग भेज देगी एक बार। मैम आप मेरा भी मिस हो गया था, मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, आप लोग को मैं रिकॉर्डिंग दिलवा दूंगी, ठीक है? ओके। हाँ जी। अब आपका क्या है, अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मरकरी इज। अब आपको देखना है कि अब आपका मरकरी किसका प्लैनेट है। मरकरी आपका माइंड है। माइंड आपका कैसा होता है? माइंड आपका डुअलिटी का होता है। अब माइंड के जो प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी आपका माइंड है। अब आपने कभी अपने माइंड को ध्यान दिया? आपका माइंड बहुत डुअलिटी रहती है, इज इट राइट? कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी मैं आपको बोलूं आप यहां से कहां जा सकते हैं, साइंस ने प्रूव किया है कि बंदे को 1 मिनट में 1000 थॉट्स आ सकते हैं। आते हैं आपको? विदाउट एनी रीजन आपको थॉट्स आते ही रहते हैं, इज इट राइट? दैट इज व्हाट मरकरी इज। तो मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ योर माइंड। अब मरकरी आपके माइंड का प्लैनेट है। बीइंग इन नेचर, थर्ड हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल डिसाइड योर लिबरेशन। अब आपका जो मरकरी के पास 2 हाउसेज हैं आपके, एक थर्ड हाउस है और एक आपका 6th हाउस है। थर्ड हाउस जो कि आपकी डिजायर्स का होता है, आपके एड ऑन स्किल्स का होता है, आपका हार्डवर्क होता है। अब जैसे कि आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट की है, अब आप देखना जब से आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट की आपको मेंटली काफी अच्छा फील हो रहा है, इज इट राइट? आपको थोड़ा सा मेंटली अच्छा फील हो रहा है, मीनाक्षी, मानसी? यस मैम। मानसी, आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है जब से आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है? अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्यों आपको अच्छा फील हो? नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, आप किसी भी चीज की पढ़ाई करोगे वो डायरेक्टली आपके माइंड को अफेक्ट करती है। अब आपके पास एक माइंड में एक लिमिटेड स्पेस है, माइंड का जो प्लैनेट है वो मरकरी है। अब आपकी 2 हाउसेस को ओन कर रहा है, एक आपका थर्ड हाउस और एक आपका 6th हाउस, जो दोनों ही आपके एड ऑन स्किल्स के प्लैनेट है। डेली, ये आपकी डेली प्रॉब्लम्स भी बताता है। अब आप अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में डेली प्रॉब्लम्स कम है। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में कम ऑक्यूपाइड रहोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आता है। तो मरकरी की एक सीधी सी रेमेडी है, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, रीडिंग करोगे, बुक्स पढ़ोगे, एड ऑन नॉलेज करोगे, माइंडसेट अपना चेंज करोगे, एंड यू शुड हैव अ लर्निंग माइंडसेट। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न होता है ना वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड में नॉलेज और विजडम, यू हैव नॉलेज एंड विजडम, तो अब आपका दिमाग कहीं जाता है, यू हैव द आंसर व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। तो अगर आपको मरकरी विच इज अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड और आप चाहते हो कि आपका माइंड एकदम शांत रहे या ओवर थिंकिंग या एंजाइटी ना हो आपको, तो आपको मेक श्योर करना है आप लाइफ टाइम लर्न करो कोई भी चीज। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, आपको कुकिंग का शौक है, जो भी आपकी हॉबी है, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, बट लाइफ टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आप लर्न करते रहे। जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे, लर्निंग के साथ आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं आपको बेटर फील होता है और वैसे ही आपके माइंड को रिलीफ मिलता है। तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन, लर्निंग और आपकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट मरकरी इज। तो मरकरी की एक सीधी सी रेमेडी है, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में लर्निंग करोगे उतना ज्यादा आपका मरकरी अच्छा होएगा। अगर हम वर्गो 6th हाउस की बात करते हैं, वर्गो जो कि 6th हाउस को ओन करता है, 6th हाउस जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे कि माइनर हेल्थ इश्यूज, लीगल केस, आप डेली क्या काम करते हो। अब वर्गो भी आपकी मरकरी की राशि है। आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम आपकी माइंड की वजह से आती है। आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपने किसी गलत लड़के से शादी कर ली, आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने लोन्स और डेब्ट्स ले लिए। हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स खुद इन्वाइट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट द 6th हाउस इज। आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन, जैसे कि जो लोग भी अपनी लाइफ में लोन्स या फिर डेब्ट्स, आपका ये लोन्स और डेब्ट्स का भी हाउस है,
आपके ऊपर कितने लोन्स और डेब्ट्स है वो भी आपका 6th हाउस डिसाइड करेगा। अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा तेज है तो आप कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में मिनिमल लोन्स डेब्ट्स हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लोन्स है, डेब्ट्स है, कहीं ना कहीं आपको एक डर लगा रहता है, एक एंजाइटी रहती है कि यार मेरे पर इतने सारे लोन्स। सो अब इट इज मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ योर लॉजिकल माइंड। आपने अपने लॉजिकल माइंड से गलत डिसीजन लिया, ड्यू टू विच यू आर सफरिंग इन योर डेली लाइफ प्रॉब्लम। अगर एक ह्यूमन बीइंग चाहे तो वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को 0 पर ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है? ओनली वर्किंग ऑन मरकरी। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होएगा, जितनी ज्यादा आपको स्किल्स होंगी, जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, उतना ज्यादा वर्गो आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करेगा। सो थॉट्स कम फ्रॉम जेमिनी, लेट्स डू द ग्राउंड वर्क दैट इज प्रैक्टिकलिटी। यहां से आपकी डिजायर्स है, लेट्स से आपकी डिजायर्स है, यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर करियर। अब आपको अपने डेली लाइफ में हार्डवर्क तो करना ही है ना। अब आपके डिजायर्स आ गए कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बट आप दिन भर सो रहे हो, आपकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ का कोई भी पैटर्न नहीं है। अंबानी को भी पता है कि उसकी लाइफ में 7 जनरेशन बैठकर वो खाना खा सकती है, बट स्टिल अंबानी सुबह उठता है, वो अपने सब मेल्स चेक करता है, सब मेल्स पर रिप्लाई करता है। सो देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्ड वर्क। इवन एलॉन मस्क, जिसको पता है कि मेरे अगर वो लाइफ में भी पूरा कुछ ना कर भी रहे, तब भी उसको भी पता है कि वो हाई एंड लग्जरी लाइफ जी सकता है और वो अपनी इच्छाओं की सब पूर्ति कर सकता है, बट स्टिल वो आज की डेट में हार्ड वर्क करता है। सो देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द हार्ड वर्क। अगर आपकी इच्छा है, इच्छा यहाँ से आ रही है 3rd से, जो कि अगेन आपका मरकरी है, जेमिनी है। अब यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी डेली लाइफ में आपको ग्राउंडिंग वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है टू गेट इनटू थिंग्स। प्रैक्टिकलिटी, टेकिंग टफ डिसीजन, लीविंग पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं, दे सफर इन द रिलेशनशिप, वो एक गलत रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मे बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और वो लड़की उनको बार बार परेशान कर रही है, बट स्टिल वो लड़का उस लड़की के साथ है। अब कुदरत की भी प्रॉब्लम है कि आप उस लड़की के साथ हो सकता है यूनिवर्स आपको साइन ले रहा हो, बट आपको अटैचमेंट हो गया। अब आपने अपना काम वाम छोड़कर बस आप लड़की पर फोकस कर रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। सो 6th हाउस कैन इजिली बी सॉल्व, जस्ट बी इन योर कॉन्शियस माइंड। जितना ज्यादा आप ग्राउंडिंग वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिकलिटी में जाओगे, उतना ज्यादा आप अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। सो लीविंग पीपल, फाइटिंग, स्ट्रगल, साइन ऑफ द डुअलिटी। तो आप कोई किसी को आप छोड़ रहे हो, यहाँ पर एक अकेली लड़की है, वर्गो का जो साइन है दैट इज अलोन, एक लड़की खड़ी है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रही है। तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, यू हैव टू बी, यू आर द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। आपको ही अपनी लाइफ में सोल्यूशंस ढूंढने। कैसे सोल्यूशंस ढूंढने? जस्ट वाइल वर्किंग ऑन द हार्ड वर्क। अगर आपकी पैसे की प्रॉब्लम है, अपनी स्किल्स ऐड ऑन करो, जॉब सर्च करो, बिजनेस करो, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही है ना। लाइक यू हैव टू टेक द फर्दर स्टेप। अगर आप फर्दर स्टेप नहीं लेते हो, कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अब किसी का भी अगर वर्गो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो भी वर्गो से आ रहे हैं। अब आपको जितना ज्यादा स्ट्रेस है, उतनी ज्यादा आपकी स्किन डैमेज होगी। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री हो, आपकी स्किन अच्छी है। तो इसका पूरा इंटरकनेक्शन, आपकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, अपने ही डेली लाइफ के सामने आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। अब आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम को आप सही तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में जितने भी डॉक्टर्स है बोलते हैं वन रीजन फॉर योर हेल्थ इश्यूज इज स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डायरेक्टली आपका हॉस्पिटलाइजेशन होएगा, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो दैट इज व्हाट वर्गो इज। कैसे चेंज हो सकती है? आपके हार्डवर्क से। आपको डेली लाइफ में कभी भी किसी के लिए जेलस नहीं करना है। हर एक बंदे की एक इंडिविजुअल जर्नी है। ये नहीं कि यार वो इतना ग्रो कर रहा है, आप कहाँ, वेयर यू वांट टू रीच, हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन लाइफ। आपको कभी भी अपनी डेली लाइफ में खाली नहीं रहना है। जितना ज्यादा, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आप स्किल्स ऐड ऑन करो। जितनी ज्यादा आप स्किल्स ऐड ऑन करोगे, उतना ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो करोगे। डायरेक्ट कनेक्शन है। आपकी 4 राशियां, तो आपके 4 हाउसेस तो ऐसे ऑटो आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन स्किल्स करी। 3rd, 6th, 9th एंड 12th। लक भी आपका चेंज हो रहा है जैसे आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, एड ऑन स्किल्स की। सो दिस इज वर्गो, जो कि आपकी डुअलिटी की राशि है। अब आपको अपनी डेली लाइफ में एक बाउंड्रीज बनानी है लोगों से। आपको फिजिकल क्लीननेस भी रखनी है। वर्गो इज अ राशि जहां पर आपको बाउंड्रीज बनानी। लेट्स से कि आप अपनी लाइफ में, आपकी कोई डिजायर है, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब यू कैन वेस्ट योर टाइम। अब आपको ऐसा लगता है कि somebody is draining my energies, बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट करो।
अब आप उस देखो सबके पास मतलब यूनिवर्स ने सबको एक जैसा वक्त दिया, सबके पास 24 आवर्स है। अब आप उस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरी लाइफ में कोई बंदा है वो मेरी एनर्जीज ड्रेन कर रहा है, स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज। अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करना है तो आपको बाउंड्रीज बनानी है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं इस बंदे से बात करता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ? सो दैट इज हाउ यू स्टार्टेड मेकिंग बाउंड्रीज। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, बिकॉज नाउ अ सिंगल आपका जितना भी टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। जितना ज्यादा बंदा अपने टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस है उसका सैटर्न उतना अच्छा है। जितनी भी आप टाइम बेस्ड कंपनीज देखोगे, लाइक जहां पर आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो एवरी आई बिलीव 28 डेज में आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है, जितनी भी टाइम बेस्ड कंपनी है सब शनि से चल रही है। जितने ज्यादा लोग अपनी टाइम को वैल्यू देते हैं वो शनि से चल रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपनी टाइम को वैल्यू दोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, और जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। तो आप किसी की भी केस स्टडी उठाकर देख सकते हो। अब वर्गो इज मेकिंग बाउंड्रीज, फिजिकल क्लीनेस। आपको अपनी डेली लाइफ में एक फिजिकल क्लीनेस रखनी है, अपनी टेक केयर करनी है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर डेली नीड्स, बाय फ्री फ्रॉम द जेलसी, बिकम परफेक्ट बाय योर ओन, डोंट ब्लेम अदर्स। 6th हाउस वर्गो का है। वर्गो मीन स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ मैं इसकी, नोबडी गेट फेलियर्स और द सक्सेस अपनी वजह से। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो या आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं उसका रीजन आप खुद हो, ना आपके पेरेंट्स है। तो स्टॉप ब्लेमिंग। और जो भी आपसे बात करता है और वो आपको ब्लेम करता है, लाइक आपको बातों में भी लोगों की समझ में आ जाएगा, वो हर एक चीज में ब्लेम करता है, इसकी वजह से मेरा काम नहीं बना, इसकी वजह से, किसी की वजह से भी आपकी लाइफ में काम नहीं बनता, आप ही की वजह से आपके काम बिगड़ते हैं और आपकी की वजह से आपके बनते हैं। वो होती है आपकी 6 नंबर की राशि, दैट इज वर्गो। सो वर्गो गिव यू स्किन डिजीजेस। अगर आपका लाइक डेली लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, वो तब होते हैं जब भी आपकी वर्गो एफ्लिक्शन में होती है। तो वर्गो राशि अगर आपकी एफ्लिक्शन में बैठी हुई है देन आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज देंगे। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस आपकी राशि है आपके लक की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि। अब सेजिटेरियस को बोला गया है कि अब यहीं पर आपके कर्सेस भी स्टोर्ड है और यहीं पर आपके ब्लेसिंग्स भी स्टोर्ड है। आप बोल सकते हो किसी की बर्थ चार्ट देखकर अगर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि सेजिटेरियस में कहीं ना कहीं कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और वो कि आपके पास कर्सेस है। बट अगर आपके पास सेजिटेरियस में पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए तो हम बोल सकते हैं दैट यू हैव अ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सेजिटेरियस को आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकते हो? 9 नंबर की राशि, फर्स्ट जुपिटर है, तो जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज और विजडम होगी उतनी ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। फ्रीक्वेंटली विजिटिंग टू अ टेम्पल हेल्प यू आउट टू इंप्रूव योर सेजिटेरियस। ट्रूथफुल टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, आपको अपने आप से सच बोलना है, लोगों से सच बोलना है, एंड आप ही अपनी लाइफ को चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, बुरा या फिर अच्छा। जैसे कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप ही रिपीटेडली कहते हैं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता हूँ। अब आप अपने आप को इतना कर्ज कर रहे हो तो आप कैसे ग्रो करोगे? सो आप ही से ही आपका कर्ज और आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है अगर डेली, एंड दैट इज वेयर दैट यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज ये कलयुग है, कलयुग में जो सोचोगे वही बन जाओगे। अगर आपके दिमाग में है दिन रात आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका सेजिटेरियस किसी तरीके से भी अफ्लिक्टेड है तो आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट लकी इनफ, मेरी लाइफ में चीजें इजी नहीं होती, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट दिस इज नॉट द राइट थॉट। आप इस थॉट्स के साथ अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो। आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि नहीं यार मेरी लाइफ में सब कुछ हो जाता है, आई जस्ट नीड टू पुट द हार्ड वर्क। सो सेजिटेरियस इज अ राशि जहां पर आपके कर्सेस और ब्लेसिंग्स यहाँ पर स्टोर है। एनीथिंग यू प्रॉमिस, गुड और बैड विशेस कम फ्रॉम यू। आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस किया, आपने किसी और से कुछ प्रॉमिस किया, मेक श्योर कि आप उस प्रॉमिस को फुलफिल, जैसे डेली बेसिस पर आप खुद से भी प्रॉमिस करते हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप उस प्रॉमिस को आप फुलफिल कर रहे हो। सेजिटेरियस दशा इज वेरी पेनफुल और सक्सेस ईगो विल बी ब्रोकन। अब किसी की भी जुपिटर की महादशा चलती, सबके लिए जुपिटर की महादशा पॉजिटिव नहीं होती है, क्योंकि जुपिटर की महादशा जैसी आपकी चलती है आपका सेजिटेरियस और पाइसेस दोनों आपके ओपन हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कितने अच्छे हैं, आपका सेजिटेरियस कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो डिसाइड करता है कि आपकी जुपिटर की दशा कैसी जाएगी। अगर आपका सेजिटेरियस में कर्सेस है तो आपकी जुपिटर की दशा काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। So Sagittarius, where both in the curses and the blessings are manifested, any malefic planet in the Sagittarius is a huge problem. अगर आपके Sagittarius में मानो कि राहु बैठ गया है, शनि बैठ गया है, केतु बैठ गया है, मंगल बैठ गया है, अब ये आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी।
क्योंकि सेजिटेरियस आपकी लक की राशि है और यहाँ पर आपके अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए हैं सेजिटेरियस में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब बंदे आपके पास सब प्लैनेट के कर्सेस हैं। कोई भी प्लैनेट आपका राहु, शनि, केतु, ऐसे प्लैनेट अगर आपके सेजिटेरियस में बैठेंगे, अब आपके पास सेजिटेरियस का कर्स है और आपको उस कर्स को, उस ऋण को इस लाइफ में पे ऑफ करना है। Earning blessings is Sagittarius. If people Sagittarius is affected, that is a worse situation. अगर एक बंदे का Sagittarius affected है तो आप बोल सकते हो कि बंदे की लाइफ में luck is missing. आप कोई भी आपको कर्सेस दे रहा है, आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, अब वो आपको दिन रात कर्सेस दे रहा है, वो कहाँ पर आपका जाकर स्टोर हो रहा है, वो आपके Sagittarius में जाकर स्टोर हो जाता है. That is what the Sagittarius is, your curses and the blessings. Pisces. Pisces आपकी 12 नंबर की राशि है, जो कि हम बोल सकते हैं कि Pisces इज अ राशि ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. Pisces आपकी सबकॉन्शियस माइंड की राशि है, आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की राशि है, आपके लॉसेस की राशि है, आपके एक्सपेंडिचर की राशि है, और ये फॉरेन ट्रैवल भी है. आप फॉरेन कंट्री रहते हो या फॉरेन ट्रैवल रहते हो, वो भी राशि है. साथ में दिस इज अ राशि ऑफ द लिबरेशन टू. अब Pisces के जो साइन है दैट इज 2 फिशेस. 2 फिशेस है जो राउंड और राउंड घूम रही है. Pisces जो करोगे, जैसे बोला गया ना, जो सोचोगे वही तुम्हारी लाइफ में होगा, एंड दैट इज व्हाट द Pisces इज. Whatever you will do that will come back to you. अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है. आप अपने प्रेजेंट पर कितने ज्यादा काम कर रहे हो वो डिसाइड करता है फ्यूचर. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे वीक बर्थ चार्ट होते हैं बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन लाइफ बिकॉज दे आर ऑन ट्रैक. दे आर डूइंग द हार्ड वर्क. वो अपने लक के भरोसे नहीं है और वो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं वो अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. और ऑन द अदर पार्ट, किसी बंदे की एक स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट है बट वो अपनी लाइफ में कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा है. आपको प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे ना. आप कोई स्किल्स ऐड ऑन कर रहे हो ना, आपको कोई काम से मतलब है, आपको कोई मतलब ही नहीं है. द प्लैनेट विल स्टार्ट इट. सो Pisces मींस आप जो भी सोचोगे अपने लाइफ में वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, एंड दैट इज व्हाट द Pisces इज. कर्मा यू हैव डन इन दिस लाइफ दैट विल कम बैक टू यू. आप जो इस जन्म में जो करोगे वही आपके पास वापस आएगा, एंड दैट इज व्हाट द Pisces इज. Pisces आपके ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुज, ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, दैट इज Pisces. मरकरी में Pisces को डेबिलेटेड बोला गया. अपने से 7th में जाकर हर एक प्लैनेट डेबिलेटेड हो जाता है. अब जैसे कि मरकरी की जो अपनी राशि है वो वर्गो है, और 1 2 3 4 5 6 7 आपको जब भी काउंटिंग करनी है हमेशा आपको उसको इंक्लूड कर करनी है. अपने से 7th में जाकर मरकरी डेबिलेटेड हो जाता है. तो बोला गया मरकरी अगर किसी का Pisces में बैठा हुआ है तो बंदे को कर्स है, उसको चीजें इतनी जल्दी याद नहीं रहती है, उसको रिकॉल करना पड़ता है, एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम. व्हाटएवर यू हैव डन विल कम बैक टू यू. Pisces रेमेडी गिव दोस थिंग और विशेस बैक टू द यूनिवर्स. आप किसी के साथ भी अगर बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, वही चीज करो जो आप अपनी लाइफ में वापस चाहते हो. मानो कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट ना करें, तब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करो, और आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, जो आप यूनिवर्स को दोगे, व्हाटएवर यू विल थिंक, दिस इज अ राशि ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू. आप जो सोचोगे वो ही आपकी लाइफ में होगा. सो दैट इज योर थॉट्स. और ये कलयुग है, तो कलयुग में ये सब राशियां आपकी ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है. सो व्हाटएवर यू थिंक दैट विल कम बैक टू यू, दैट इज Pisces. तो ये आपका था. दिस इज ऑल अबाउट दीज साइंस एंड हाउ दीज वर्क्स. एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ जी.